कश्मीर गई थी फॉर माई बर्थडे ट्रिप। हर चीज़ थी, हमने झगड़ा भी किया ट्रिप में, हमने एक दूसरे का ख्याल भी रखा। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगा हुआ और नहीं हुआ। काया पलट का पहली बार स्क्रीनिंग हुआ था। आई मेट अनुपम सर खुजाना शुरू किया बंदरों की तरह। वो डेटा चला गया, सब गया। Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Welcome to another video. I hope you all are doing well. So मैं अपने फ़ोन में ना सारे पिक्चर्स देख रही थी and I was just going through कि 2023 में क्या क्या हुआ मेरे साथ and what all did I do and I realized कि बहुत सारी चीज़ें हुई यार and like a lot of things I kind of haven't shared with all of you. कुछ funny, कुछ अच्छी, कुछ not so good, मतलब a lot of things in general. So I thought कि let's do like a quick recap of 2023. Okay. So starting of the year मैं कश्मीर गई थी for my birthday trip. But let me share like the real honest reason कि मैं क्यों कश्मीर गई थी. Okay. Just hear me out. I don't know आप relate कर पाओगे कि नहीं, but I know for a fact कि बहुत सारे लोग relate कर पाएंगे इस बात से कि आपको पता नहीं होता है कि बर्थडे पे करना क्या रहता है. It's kind of very stressful. घबराहट होने लगती है. So that was the main reason कि मैं कश्मीर चली गई थी because I was like अब समझ नहीं आ रहा है करना क्या है. So let's go on a ट्रिप. डोंट वरी, इस साल मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. बट टॉकिंग अबाउट माई कश्मीर ट्रिप, आई हैव टू से दैट वो मेरे 2023 का बिगेस्ट हाईलाइट था. वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट मैं बोल सकती हूँ बिकॉज इट वॉज so wholesome. It was our first sibling trip also. So मेरा और प्रियम का पहला ऐसा अकेले ट्रिप था. So it was fun यार. It was everything perfect. हर चीज़ थी. हमने झगड़ा भी किया ट्रिप में, हमने एक दूसरे का ख्याल भी रखा, हमने बहुत अच्छे से घूमा, बार्गेनिंग किया. It was like everything, you know. So and it was my dream destination. मुझे बहुत टाइम से जाना था. So it was I think the perfect time for me also to go visit Kashmir. Winter, birthday. So it just made a lot of sense. So yeah, I think the year kind of started on a really beautiful note, I should say. Then let's see यार, काफ़ी चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं है कि 2023 में कितना कुछ हो गया और ऐसे लग रहा है ऐसे करके निकल गया. I think in Feb I signed my first ever गुजराती फिल्म जिसके बारे में बहुत टाइम से बात कर रही हूँ and everybody is like आप इतना बात कर रहे हो, when is it releasing? Just let us know guys. I think I am also in the same situation कि I am also asking the makers कि please यार जल्दी रिलीज कर लो, but there are a few things back end पे हो रही है. That is the reason a bit of delay. Hoping कि 2024 में it's definitely going to release. So yeah, I'm excited for that because that was a very different experience. You know, I've been speaking गुजराती, मतलब यहाँ पे भी घर पे हम सिर्फ गुजराती में बात करते हैं and it's like that गुजराती connect, you know, but कभी गुजराती में काम नहीं किया था. So I'm really glad कि मुझे वो experience मिला because that was a different team, different vibe altogether. बहुत मजा आया मुझे. Like I made new friends, I worked with some amazing set of people और बहुत मज़े किए यार. सोमनाथ, द्वारका, गोवा, दीव, लाइक हम 4 अलग अलग जगह पर हमने जाके शूट किया था which was so much fun. Like I've made some amazing memories around it. So yeah, that was again like a really big part of 2023. Then let's see. क्या हुआ? Let's talk about some weird moments. Shall we? कुछ weird या थोड़ी सी sad moment के बारे में बात करते हैं because let's just be honest, सब ऐसे नहीं होता है. Every time there's ups and downs और कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ थोड़ी सी बहुत low moments आते हैं. So a very similar low moment kind of came, I should say, in the starting of the year also and in the mid of the year also. So there was this huge project. I haven't shared this with anybody, but क्योंकि अब मैं literally I'm being very candid और बस मैं बोल रही हूँ, आप सबके साथ बातें कर रही हूँ. So let's talk about that कि a big huge project that I was signed for और मैं करने वाली थी which I was so excited. It would have been the biggest project for my life और जिसके लिए मैंने काफ़ी वेट भी किया था, you know, but there were some issues जिसकी वजह से the project only kind of got scrapped. So वो न्यूज़ मुझे मिली ईयर की स्टार्टिंग में आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम माई ट्रिप. सो दैट वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल झटका बिकॉज वो एक चीज़ थी जो मैं बहुत, यू नो, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड यू वर वेरी एक्साइटेड. होता है ना कि आपने कुछ ड्रीम किया होता है, कुछ होता है एंड देन सडनली आपको पता चलता है कि ओके इट्स नॉट हैपनिंग. सो दैट वॉज लाइक रियलिटी चेक काइंड ऑफ फॉर मी क्योंकि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी. आई वॉज रियली अपसेट. ऑलमोस्ट ऐसा होता है ना कि यार आपका ब्रेकअप हो गया किसी, मतलब मुझे उतना दुख हो रहा था उस बात
सकता बिकॉज इतनी एक्सपेक्टेशंस मैंने बना ली थी. होप एंड प्रे मैनिफेस्ट कि यार वो वापस से यू नो दे स्टार्ट मेकिंग इट एंड दे डिड प्रॉमिस मी कि जब भी वो कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे कभी फ्यूचर में बना देन दे डेफिनेटली मेक इट विथ मी. सो आई स्टिल काइंड ऑफ मैनिफेस्ट एंड मैं अभी भी वो होप करती हूँ प्रे करती हूँ दैट इट शुड स्टार्ट यू नो अगेन, वो वापस वर्कआउट हो जाए. और एनीवे दैट वाज दैट वन थिंग. वापस मई में, अप्रैल या मई में वापस मेरे साथ ऐसा कुछ सिमिलर हुआ. देयर वाज दिस प्रोजेक्ट दैट आई वाज वर्किंग ऑन एंड नॉट एग्जैक्टली वर्किंग ऑन, मतलब हो गई थी थोड़ी बहुत चीज़ें, बातचीत हो गई थी ये वो, बट अगेन अ वेरी काइंड ऑफ सिमिलर थिंग हैपेंड एंड द प्रोजेक्ट ओनली गॉट शेल्फ्ड. सो या, सो वो दो एक चीज़ बड़ी मेजर हुई मेरी लाइफ में. ऐसा लगा था हुआ और नहीं हुआ. So anyway, I think I'm sure there's much more bigger and better thing instead of that. So अब मैं मतलब सेकंड प्रोजेक्ट के लिए उतना मैं दुखी नहीं हूँ, बट वो पहला वाला जो मैं बता रही हूँ उसके लिए अभी मुझे थोड़ा सा ऐसे दिल में होता है कि यार शिट. But it's okay guys, I think life goes on, you move on, it's a part of your life. हर चीज़ वैसे नहीं जाती है जैसे आप प्लान करते हो. So that's okay. It's a learning, right? फिर मैं वियतनाम गई. I think Vietnam again was one of the major highlights of 2023. I had so much fun and it was a different experience altogether. We were there with the government of India over there and वहाँ पर काया पलट का पहली बार screening हुआ था. It was the world premiere for काया पलट and I don't know, it was a different feeling जब मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पे देखा. When people say, मैं कभी उस बात को कभी relate नहीं कर पाई when they say that you know it's a different feeling when you see yourself on the big screen, but now I could relate. But क्योंकि वो एक world premiere में भी जब मैंने अपने आप को screen पे देखा, I got kind of really emotional in a way कि it just felt really special, you know. Obviously ऐसा नहीं था कि release हो गई थी फिल्म और बहुत लोगों ने देखा, ऐसा नहीं था, फिर भी I could feel that. So it was really special. I saw my performance, I saw the film for the first time, so it was really amazing. और मुझे personally like अच्छा लगा था अपना काम, which is kind of really rare. So yeah, I'm really hoping कि 2024 में काया पलट also should release because it's been a while. I know you all still ask me कि यार आपने वो 2022 में shoot करी थी, why hasn't it released? That's because it was supposed to be like that only. We were supposed to send it to different festivals, have it run in different festivals और अलग अलग जगह पर भेजनी थी. उसके बाद you know उसे कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे हमें रिलीज करनी थी. So let's hope, let's pray कि वो अगले साल रिलीज हो. एंड yeah, I mean Vietnam, I think when I think and look back, it was a good phase. Like those 8-9 days were really really nice. बहुत घूमा हमने. I made some new friends. I met Anupam sir for the second time, but पहली बार ऐसा interaction हुआ था and I could learn so much from him. Like he's a legend. He's worked so much. He's been in the industry for so many years. मेरे पैदा होने से भी पहले, and he has a different life experience. So just to share a table, eat with him, have a conversation, just not even a conversation, but उनको सुनना भी इतना अच्छा लग रहा था, इतना कुछ सीखने मिल रहा था. So that was also really really nice. Yeah, Vietnam was really amazing. नेक्स्ट लेट्स सी. अब मुझे ऐसे याद, मैं तो पिक्चर्स देख रही हूँ और मुझे धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही है. सो उसके बाद देयर इज दिस शो दैट आई शॉट ऑलरेडी. आई एम श्योर आप लोगों ने काफ़ी क्लिप्स वगैरह देखी है इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ, बट आई हैवंट रियली स्पोकन अबाउट इट, जो मैं अभी भी डिटेल में कुछ जाने नहीं वाली हूँ. बट अगेन दैट्स अनदर प्रोजेक्ट दैट विल रिलीज इन 2024 एंड वो मुझे ऐसा लगता है कि टुवर्ड्स जैन एंड या फेब में होपफुली रिलीज हो जाना चाहिए. अगेन वर्किंग ऑन दैट project was also really nice. I'll just tell a little about my character. Her name is Brinda. She's a journalist and it's a journey. It's a really nice show. I think I enjoyed being Brinda and I enjoyed the entire process. बहुत मजा आया मुझे. I'm really glad that I got to do it. I got to work on it. I got to learn so many things in general. So वो बड़ा अच्छा experience था. उसी का एक schedule shoot करने हम मनाली गए थे. मनाली ट्रिप से मेरी हेल्थ की जो बैंड बजी है गाइस, मतलब मैं बता नहीं सकती. अरे मैंने कहा कहीं तो हंसाने की कोशिश करें. क्या हुआ? इसको ना फीवर है.
बार बार फीवर चढ़ा, अभी दोबारा पैरासीटामोल दिया है इसको। मनाली में सबसे पहले मुझे एक नी पेन शुरू हुआ था। मैंने एक वीडियो में बताया था, बट इसमें मैं थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कुछ एक आध पिक्चर भी दिखाऊंगी एंड आपको ऐसा लगेगा हाय इसके साथ कितना बुरा हुआ। एक नी में पेन हुआ और वो इतना गंदा था। आई डोंट नो क्या हुआ था वहाँ पे, किस वजह से हुआ था। शायद मुझे चिकनगुनिया वहीं हो गया था या टाइफाइड हो गया था, उसकी वजह से सडनली वो नी पे आ गया था। बट देयर वाज सम अनबेरेबल पेन जिसकी वजह से मुझे चलने नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आई वेंट टू एन ऑर्थोपेडिक और वो सब हुआ। उसके बाद मुझे फीवर आया, थोड़े से मैंने दवाई खाई, मैं थोड़ी सी ठीक हुई, मैंने शूट फिनिश किया और मैं वापस आ रही थी। आई वाज ऑन चंडीगढ़ एयरपोर्ट और मैंने ना ऐसे खुजाना शुरू किया बंदरों की तरह। अब ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा हेल्थ अपडेट वीडियो देखा होगा। लेट मी शो यू द पिक्चर, स्क्रीन पे आ जाएगी वो पिक्चर। इतने गंदे मेरे रिएक्शन हुआ था पूरी बॉडी पे, नॉट जस्ट फेस, लाइक ऑन माई इंटायर बॉडी इंक्लूडिंग दिस एंड एवरीवेयर आई वाज जस्ट इचिंग एंड इट वाज पेनफुल। ओके, सो दिस वाज द स्किन एलर्जी जिसकी मैं बात कर रही थी एंड इट वाज हॉरिबल। उसके बाद मैं दुबई गई। दुबई में क्या हुआ, इवेंट, आई वाज देयर फॉर अ नवरात्रि इवेंट हो गया। उसके बाद सेकंड डे इवेंट का खत्म हुआ, उसके बाद मैं चेंज वेंज कर रही थी। आई वाज मैसेजिंग समबडी और वो मैसेज करते करते ना मेरा स्क्रीन गया, मतलब जैसे बड़ी सी ब्राइट लाइट आ गई थी मेरे स्क्रीन पे। सो इमेजिन यू आर इन अब्रॉड, योर फोन स्टॉप्स वर्किंग, लाइक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप हैंडीकैप्ड हो गए हो, यू नो। मेरी मम्मी का भी फोन था, बट इफ आई वांट एनी कॉन्टैक्ट तो मेरे फोन में होगा ना, मेरी मम्मी के फोन में थोड़ी होगा। मेरी मम्मी के फोन में रिश्तेदारों के नंबर्स होंगे। बेसिकली एक फोन में कुछ नहीं था तो आपको दूसरे फोन में सब कुछ वापस से सेटअप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डे संडे था और जैसे सर्विस सेंटर्स ये वो सब बंद होते। सो फॉर ऑलमोस्ट 1.5 days आई वाज विदाउट फोन इन दुबई। मेरे पास फोन ही नहीं थे। आफ्टर 1 day देयर वाज दिस वेरी स्वीट गाय जिनके दुकान से हमने खजूर खरीदे थे। ही इज एन इंडियन, तो उन्होंने अपना फोन बोला कि आप ले लो, ये मेरा स्पेयर फोन है, यूज इट फॉर सम टाइम जब तक आपका फोन रिपेयर नहीं होता है। दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम। मतलब सच में ऐसा लगा कि यार लोग होते हैं जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं, यू नो। फोन सर्विस की बात मैं बोलूं, मैं 3-4 स्टोर्स में गई जहाँ पे 4 घंटे की लाइन लगी है। मेरे को ऐसा लगा ये क्या, ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं, करना क्या है। मैं मॉल के नीचे आई, वहाँ पे ना एक छोटा सा कियोस्क था, मतलब इतना सा कियोस्क होगा जहाँ पे वो बंदा मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल एक्सेसरीज बेच रहा था, जिसको मैंने ऐसे, वो इंडियन दिखा तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब अब ये मेरा फोन है, ऐसा कुछ ठीक करके दे दो, बट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट हैव अ बैकअप ऑफ माई फोन। बिकॉज वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल था कि यार वो डेटा चला गया, सब गया। मतलब इतने सालों की मेहनत, इतना कुछ आपके फोन में स्टोर्ड होता है ना। मैं बता रही हूँ, मैंने अपने फोन के पासवर्ड के साथ अपना फोन ऐसे ट्रस्ट कर दिया बिकॉज आई वाज लाइक भाई जो करना है कर लो, मेरे को फोन रिपेयर करके दे दो। बट लकीली आफ्टर लाइक 12-14 आवर्स ही गिव मी माई फोन बैक। मतलब लिटरली मेरा डेटा बचा हुआ था, सब कुछ ठीक था। सो मतलब मेरी जान में जान आई थी। मैं घूमना भूल गई थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मेरे को स्काई डाइविंग करनी थी, मेरे को कितनी सारी चीजें करनी थी, मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरी सारी बुकिंग्स और सब कुछ ना मेरे फोन में था। Anyway, जब मैं वापस दुबई जाऊंगी या मैं वापस जाऊंगी तो मैं स्काई डाइविंग जरूर करूंगी। इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप विथ माई मॉम, लाइक हम ऐसे गए हैं बट मैं और मम्मी साथ में कभी नहीं गए कहीं। सो दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप। वैसे के बाद फिर मैं वापस आई और फिर मुझे पता चला मुझे चिकनगुनिया हुआ है, बहुत सारी दवाई खानी थी। सो आई स्टार्ट ऑल ऑफ माई मेडिकेशन। अभी भी मुझे यहाँ पे हल्का हल्का सा आज दर्द हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है फॉर सम रीजन। प्रे करना यार मेरे जॉइंट पेन चले जाए बिकॉज जॉइंट पेन बड़ा हॉरिबल होता है, आपको ऐसा लगता है बुढ़ापा आ गया है। Anyway, what else? बस यार उसके बाद बस मेरा रिकवरी मोड ही चल रहा है। दिवाली गया, फेस्टिवल चले गए, क्रिसमस आ गया, क्रिसमस चला गया, द ईयर इज ओवर। ऐसे किया और साल खत्म हो गया। बट सो मच हैज हैपेंड इन दिस ईयर, आई कांट इवन टेल यू। इट वॉज एन ओवरवेलमिंग ईयर बिकॉज अ लॉट हैपेंड और बड़े एक्सट्रीम में हुआ है। लाइक कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हुई, कुछ इतने लो फेजेस आए दैट यू नो यू रियली हैड टू push yourself to get up. I generally don't share a lot of my vulnerable moments, but don't think कि सब happy होता है, सब ये ऐसे ही चहकती है। Everyone has their moments, ups and downs होते हैं। मैं भी रोती हूँ, I'm sure, मैं आपको पता है मैं बहुत रोती हूँ। That's how my 2023 was. बड़े brief में, I don't know, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, वीडियो बहुत लंबी होगी, but this was how my 2023 was. Okay guys, on that note, I think I should end this video. But जाते जाते I think I would want to
to share one life lesson or one lesson, one learning that I had in 2023 is never neglect yourself. You know what I mean? Don't be so hard on yourself because आज का जो टाइम है ना, like everybody is running here and there. ये भी एक चीज़ है जो मैं बहुत बात करती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को इग्नोर मत करो. आपको क्या चाहिए, what are your priorities, find a solution for that, have time for your own self or don't be so hard on yourself कि हाँ भाई ये भी ये कर रही है तो हमने भी करना ही है. Mental health is very very important. So I think 2023 का सबसे बड़ा learning ये था. And also one more thing, health. Like I've been a person जो अपनी हेल्थ को बड़ा ऐसे कैजुअली ले लेती है और जब ऐसे झटका पड़ता है ना एंड देन देयर कम्स योर लोएस्ट फेज एंड यू रियलाइज कि जब हेल्थ खराब होती है कुछ नहीं हो पाता है. लाइक एक टाइम था जब मेरे से ये फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा था व्हेन आई वाज हैविंग दोस पेन. तब आपको रियलाइज़ होता है कि अपने आप को इग्नोर करना, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करना बहुत बुरी चीज़ है. सो नेवर डू दैट एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. आई थिंक दैट इज़ द की. हार्ड वर्क तो होता है बट दैट कंसिस्टेंसी, दैट डेडिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. यू नो, इनफ ज्ञान. आई थिंक अब मुझे बड़ा फिलोसॉफिकल नहीं बनना है बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग 2023. I hope कि 2024 हम सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो. So let's pray, let's hope कि 2024 बहुत सारी खुशियाँ हम सबके लिए लेकर आए, बहुत मज़ेदार हो and above all हम सबका mental health, physical health अच्छा रहे, सही रहे. And on that note, happy 2024 guys, happy new year and yeah, that's it for this video. Bye bye.